Good morning, students. In 12th Commerce Account subject, today we have to start with new book, that is Part B, Analysis of Financial Statement. Part B, Analysis of Financial Statement, Chapter number 1, Financial Statement of Companies. This is the name of the chapter, Financial Statement of Companies. I hope all of you are having the book, because I have already in advance I have told you we will start after the summer vacations. We will start with this book. Partnership chapter book is over. In that only one chapter is left, that is not for profit organization, that we will do after that, after this book. So today's topic is financial statement of companies. In companies, printed and fixed format, standard format is there for the preparation of balance sheet and profit and loss account. Financial statements, first of all you have to know what is the meaning of financial statement. In that, in 11th you have learned trading account, profit loss account and balance sheet. These are the name of financial statements. So these financial statements, in the case of companies, they are having standard format. Accordingly we have to prepare the balance sheet. That is given in part 1 of schedule 3 of the Companies Act 2013. Companies Act 2013. In that there is schedule number 3. In schedule number 3, two parts are there, part 1 and part 2. Part 1 is for balance sheet and part 2 is for profit or loss account. What are the procedure, what are the rules for preparing trading account, profit loss account and balance sheet, income statement and balance sheet, that are given in part 1 and part 2. Part 1 for balance sheet, part 2 for income statement. Printed formats are given in the case of companies for preparing income statement and balance sheet. In Companies Act 2013, Schedule 3, there are two parts. One part is for balance sheet, part number 1 is for balance sheet, and part number 2 is for income statement. So we have to learn how to prepare balance sheet in the case of companies according to Schedule 3, part 1 of Companies Act 2013. This you have to learn. It is on page number 1.3. Format is given. Part 1, form of balance sheet, name of the company, balance sheet as at, जो डेट होगी वो लिखेंगे, पर्टिकुलर्स का कॉलम है, नोट्स, करंट ईयर फिगर्स एंड प्रीवियस ईयर फिगर्स. अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट, इन बैलेंस शीट, कंपनीज की बैलेंस शीट में हमें प्रीवियस ईयर की फिगर को भी, इन्फॉर्मेशन को भी देना होता है. तो आपको सिर्फ कॉलम खोलना और कुछ नहीं करना है. पर्टिकुलर्स, नोट्स, फिगर्स ऑफ करंट ईयर, फिगर्स ऑफ प्रीवियस ईयर. हो गया. दिस इज द फॉर्मेट. In two parts you have to prepare the balance sheet. First part is, it is in vertical form, not horizontal, vertical, ऊपर से नीचे. तो फर्स्ट पार्ट इज ऑफ इक्विटी एंड लायबिलिटीज. सबसे पहले इक्विटी एंड लायबिलिटीज आएगा. इक्विटी एंड लायबिलिटी, लायबिलिटी साइड को बोलते हैं. आपने सीखा ना, बैलेंस शीट की दो साइड होती है, एक लायबिलिटी और एक असेट्स. तो लायबिलिटी को बोलते हैं इक्विटी एंड लायबिलिटीज. तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू राइट इक्विटी एंड लायबिलिटीज. एंड सेकंड पार्ट यू विल सी आफ्टर सम इन नेक्स्ट पेज. सेकंड पार्ट इज ऑफ असेट्स. ऊपर इक्विटी एंड लायबिलिटीज, नीचे असेट्स. दो पार्ट में बैलेंस शीट होगी वर्टिकल फॉर्म में. पहले हॉरिजॉन्टल फॉर्म में होती थी, लेफ्ट में लायबिलिटीज, राइट में असेट्स. कंपनी केस में वर्टिकल फॉर्म में है, ऊपर लायबिलिटीज, नीचे असेट्स. तो लायबिलिटीज का क्या नाम है? इक्विटी एंड लायबिलिटीज. और असेट्स का नाम एसेट्स. इज इट क्लियर? अब इसमें आपको नजर आ रहा होगा, बोल्ड लेटर्स में लिखा हुआ है 1 2 3 4, 4 ये हेड है लायबिलिटी साइड में. 4 मेजर हेड, 4 मेजर हेड्स आर देयर इन लायबिलिटीज, इक्विटी एंड लायबिलिटीज. फर्स्ट इज शेयर होल्डर फंड्स. Second is share application money pending allotment. Third is non-current liabilities, and fourth is current liabilities. These are the 4 heads, 4 major heads under the part equity and liabilities. Is it clear? In the same way, in asset side is also there are 2 heads, 2 major heads in assets, that is non-current assets and current assets. This is the format of balance sheet. 4 major heads are in liability side, 2 major heads are in asset side. Total 6 major heads are there. इक्विटी एंड लायबिलिटीज, असेट्स. 2 पार्ट में बैलेंस शीट है, ऊपर इक्विटी एंड लायबिलिटीज, नीचे असेट्स. इक्विटी एंड लायबिलिटीज में भी 4 हेड हैं. शेयर होल्डर्स फंड, शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, नॉन करंट लायबिलिटीज एंड करंट लायबिलिटीज. 4 हेड हो गए. तो उसके बाद असेट्स आ जाती है. असेट्स में भी 2 हेड हैं, नॉन करंट एसेट्स, करंट एसेट्स. ये तो हो गए हेड. अब इन हेड के अंदर भी इनके कुछ पार्ट्स हैं, उनको बोलते हैं सब हेड. बट दे आर कॉल्ड सब हेड. मेजर हेड्स मैंने आपको बोल दिया, अब लर्न भी हो गए होंगे. उनके अंदर जो होते हैं वो सब हेड होते हैं, वो भी आपको ऐसी सीक्वेंस में ही याद करने हैं. सबसे पहले है शेयर होल्डर्स फंड. शेयर होल्डर फंड में 3 सब हेड है, ABC आपको नज़र भी आ रहा होगा. शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट. ये आपको नेम लर्न करने हैं. सबसे पहले ए पार्ट में सीक्वेंस में ही शेयर कैपिटल. इसमें शेयर कैपिटल का अमाउंट आएगा, कैसे कैलकुलेट करना वो हम अभी डिस्कस करेंगे. शेयर कैपिटल. सेकेंड इज रिजर्व एंड सरप्लस, एंड थर्ड इज मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट. These are the 3 sub head
अंडर मेजर हेड शेयर होल्डर्स फंड। सेकेंड इज शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, सेकेंड हेड, इसमें कोई सब हेड नहीं है, राइट। थर्ड हेडिंग है मेजर हेड नॉन करंट लायबिलिटीज़, जैसे आपने 11 में सीखते हैं ना लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़, तो लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़ को कंपनीज के केस में लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़ ना बोल के नॉन करंट लायबिलिटीज़ बोलते हैं। करंट वो जिसे विद इन 1 ईयर हमें पे करना है, और नॉन करंट वो मोर देन 1 ईयर वी विल टेक टू पे द लायबिलिटीज़, तो वो नॉन करंट लायबिलिटीज़ यहाँ पे आएंगी। तो इसके अंदर जो सब हेड हैं वो है नंबर 1 लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, 5 साल 10 साल के लिए जो आपने बोरोइंग दिए, जैसे डिबेंचर्स हो गया, बैंक लोन हो गया, वो सब यहाँ आएंगे लॉन्ग टर्म बोरोइंग। लॉन्ग टर्म बोरोइंग जो लॉन्ग टर्म के लिए लोन लिए हुए हैं। और डिटेल में डिस्कस करें, पहले तो नाम ही समझ लेते हैं। सेकेंड है डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी। डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी क्या होता है मैं आपको समझाऊंगा, हालांकि एग्जाम में पूछा नहीं जाएगा, नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से हम इसको डिस्कस करेंगे। थर्ड इज अदर करंट लायबिलिटीज एंड फोर्थ इज लॉन्ग टर्म प्रोविजन। 4 ही हैं ये। तो 4 सब हेड हैं नॉन करंट लायबिलिटीज़ के अंदर। पहला है लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, सेकंड नंबर पे डेफर्ड टैक्स लायबिलिटीज़, थर्ड नंबर पे अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज या बोरोइंग्स, और फोर्थ नंबर पे लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। इनके अंदर क्या क्या आएगा वो बाद में डिस्कस करते हैं। फिर है बेटे फोर्थ जो हेड है मेजर वो है करंट लायबिलिटीज़। करंट लायबिलिटीज़ के भी 4 सब हेड हैं। नंबर 1 शॉर्ट टर्म बोरिंग, शॉर्ट टर्म के लिए जो लोन लिए हुए हैं जैसे क्रेडिटर्स वगैरह हो गया, शॉर्ट टर्म के लिए जो लोन लिया हो जैसे बैंक ओवरड्राफ्ट हो गया। ट्रेड पेबल्स सेकंड नंबर पे, थर्ड नंबर पे अदर करंट लायबिलिटीज़, और फोर्थ नंबर पे शॉर्ट टर्म प्रोविजन। 4 सब हेड है, ठीक है। फिर लायबिलिटी साइड ओवर हो गया, अब असेट साइड आ जाती है। असेट साइड में 2 हेड है मेजर, नॉन करंट एसेट्स एंड करंट एसेट्स। तो नॉन करंट एसेट्स में जो सब हेड हैं वो है नंबर 1 फिक्स्ड एसेट्स, 2 पार्ट्स में, वो भी टेंजिबल इंटेंजिबल कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस और इंटेंजिबल एसेट्स अंडर डेवलपमेंट, ये इसके सब हेड बोलते हैं। सब हेड हमें फिलहाल सब हेड याद करने हैं। तो वो पहला है फिक्स्ड एसेट्स, सेकेंड है नॉन करंट इन्वेस्टमेंट यानी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, थर्ड इज डेफर्ड टैक्स एसेट्स नेट, वहाँ लायबिलिटी था यहाँ एसेट्स है, फोर्थ इज लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, और फिफ्थ इज अदर नॉन करंट एसेट्स। फिर करंट एसेट्स है मेजर हेड, उसके सब हेड क्या है, सबसे पहले करंट इन्वेस्टमेंट, सेकंड नंबर पे इन्वेंट्री, थर्ड नंबर पे ट्रेड रिसीवेबल्स, फोर्थ नंबर पे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, 5 शॉर्ट टर्म लोन्स एंड 6 अदर करंट एसेट। तो ये आपको हेड और सब हेड आपको ये लर्न करने हैं, क्रैम करने हैं। प्रिंटेड फॉर्मेट है, स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, इसके अकॉर्डिंग ही सारी इन्फॉर्मेशन दी जाती है कंपनीज की बैलेंस शीट की, और ये आपको एज इट इज़ लर्न भी करना है। इज इट क्लियर? तो फिर से बात कर लेते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनीज। हम चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मतलब इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट। दे हैव टू बी प्रिपेयर्ड इन द केस ऑफ कंपनी अकॉर्डिंग टू शेड्यूल 3 पार्ट 1 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। कंपनीज एक्ट 2013 का शेड्यूल 3 है। उस शेड्यूल 3 में 2 पार्ट है, पार्ट 1 और पार्ट 2। पार्ट 1 में बैलेंस शीट के बारे में रूल्स एंड रेगुलेशंस मेंशन है, और पार्ट 2 में इनकम स्टेटमेंट के बारे में। तो वी हैव टू कंसिडर बैलेंस शीट अकॉर्डिंग टू पार्ट 1 शेड्यूल 3 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। वर्टिकल फॉर्म में बैलेंस शीट बनाई जाएगी। पर्टिकुलर्स, नोट्स, वर्किंग नोट बनाते हैं ना कि बैलेंस शीट में कोई भी इन्फॉर्मेशन आ रही है तो कैसे आ रही है, टोटल वगैरह तो नोट्स बनाते हैं वर्किंग नोट। उस नोट्स का नंबर यहाँ पे आता है, बताऊँगा अभी। पर्टिकुलर्स, नोट्स, करंट ईयर फिगर और प्रीवियस ईयर फिगर, ये कॉलम्स है। अब क्या है, 2 पार्ट से बन रही है। ऊपर सबसे पहले लायबिलिटी साइड, उसका नाम है इक्विटी एंड लायबिलिटीज। उसके बाद आएगी एसेट्स, लेफ्ट और राइट की बजाय वर्टिकल फॉर्म में है। पहले इक्विटी एंड लायबिलिटीज और फिर एसेट्स। इक्विटी एंड लायबिलिटीज में 4 मेजर हेड हैं। नंबर 1 शेयर होल्डर फंड, नंबर 2 शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, नंबर 3 नॉन करंट लायबिलिटीज, और नंबर 4 करंट लायबिलिटीज। 4 मेजर हेड हो गए। फिर एसेट साइड शुरू हो जाएगी। एसेट्स में 2 मेजर हेड है, नंबर 1 नॉन करंट एसेट्स और नंबर 2 करंट एसेट्स, और बैलेंस शीट होगा। इन हेड्स के अंदर सब हेड हैं, वो भी हमें लर्न करने हैं, सेल वाइज और सब लर्न करने हैं। शेयर होल्डर्स फंड सबसे पहले था, उसके 3 सब हेड मैंने आपको बताया था, वो हैं, आप देख भी सकते हो। शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट, ये 3 सब हेड है। सेकेंड जो हेड है आपका शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, उसमें कोई सब हेड नहीं है, ठीक है। थर्ड नंबर पे आपका है नॉन करंट लायबिलिटीज, इसमें 4 सब हेड है। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटीज, अदर लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स और लॉन्ग टर्म प्रोविजन। इस तरह से आपको लर्न करना है। फिर जो फोर्थ है करंट लायबिलिटीज का मेजर हेड, उसके अंदर भी 4 सब हेड हैं। शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, ट्रेड पेबल्स, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, अदर शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स और शॉर्ट टर्म प्रोविजन, अदर करंट लायबिलिटी शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, ठीक है। अब एसेट्स पे आ जाओ। एसेट्स में 2 हेड हैं। पहला हेड है नॉन करंट एसेट्स, उसके सब हेड कौन कौन से हैं? नंबर 1 फिक्स्ड एसेट्स, नंबर 2 नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। सीक्वेंस में याद करना है, सबसे पहले फिक्स्ड एसेट्स ही आएगा, उसके सब हेड भी हैं, टेंजिबल इंटेंजिबल कैपिटल वर्किंग प्रोग्रेस, वो हो जाएगा बाद में। मेन सब हेड फिक्स्ड एसेट्स, फिर नॉन करंट इन्वेस्टमेंट,
फिर डेफर्ड टैक्स एसेट्स, फिर लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस और फिर अदर नॉन करंट एसेट्स 5। फिर करंट एसेट्स, उसमें 6 पॉइंट्स आपको याद करने हैं करंट एसेट्स में। नंबर 1 करंट इन्वेस्टमेंट, सेकंड नंबर पे इन्वेंट्री, थर्ड ट्रेड रिसीवेबल्स, फोर्थ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, 5 शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस एंड 6 अदर करंट एसेट्स। तो ये हेड और सब हेड और फॉर्मेट ऑफ बैलेंस शीट मैंने आपको समझा दिया, इससे आप लर्न करो। इसके बाद फिर हम आगे फॉरवर्ड कंसिडर करेंगे कैसे इसके अंदर की इन्फॉर्मेशन को लिखा जाता है। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। ये फॉर्मेट आप लर्न करके रखो, नेक्स्ट वीडियो के लिए आगे बताओ। थैंक यू एंड ओवर।